Alternate leg. Left leg forward, right leg back, and then balance your body on your forearms. Right knee should not be touching. Knee down and balance your body on your right forearm. Push your left leg outwards. Again, you can bend your left leg and try to touch your heel on your hips. This is great for your quad muscles and your thighs. Hold for 20 and then slowly back to normal. Next, we do pigeon pose. Left leg stretched, right leg bent. And then hold for 30 seconds, pigeon pose. Left leg should be fully stretched, toes on ground. And up, hold for 30. Five, four, three, two, one. And now reverse your position. Left leg bent, right leg fully stretched, right toe on the ground. Again, pigeon pose. Here again, you can add a little variation. You can bend forwards, stretch your hands, and try to touch your chin to the ground. Only those without any back problem should do it. And slowly back up. Next, we do Vasisthasana side plank. Side plank. Prepare your body for side plank. If you cannot balance it like this on your hands, you can do it on forearms also. Body should be in straight line and then hold for at least 20 and if possible 30 seconds. Okay, we do it together. You can stretch your arms also.
Hold for 20. 5, 4, 3, 2, 1, and down. Slowly down. Repeat this from other side. Again. 20. 4, 3, 2, 1, and down. Next, Vajrasana. On your knees. Okay. We do puppy pose. Puppy pose. Just open, hands up, and then stretch like a puppy. The back should be fully stretched. Try to touch your chin and chest onto the ground. For 30 and then slowly up into cat and cow. Cat and cow position. Cat and cow for 10 times. 10 cycles. Breathe in. Gaze up. Body arch on center. Breathe out. Reverse your arch. Neck between your arms. And then again, repeat for 10 times, cat and cow. Breathe out. Breathe in. And out. Okay. Next, we do lizard jump. Lizard jump. Traditional dand. Come forward in lizard position. This is the first position. Next, bring your chin down and touch the ground. And then up. Breathe in and up. This is one set. Now you can repeat from other side also. Okay. I'll show you how to do it. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Again, those who are having back problems, those who are having high blood pressure, they should try to do it slowly or simply do some other
asana. Those who are fit, they can do it. Come in this position. This is the preparatory position. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Repeat for 10 times. I want you to have a good workout today because tomorrow we are off. 10 times. Lizard jump. Okay. Next, half burpee. Half burpee. We had done it once earlier also, but again, just for the benefit of all, I'll show again how to do it. Come in this all fours position. Okay. Now you have to jump down and up and again in this position. Ready for jumping again. I'll show you once again. Like this. And up. In a single forward thrust. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Repeat it as much as you can and as fast as you can. I'll show you how to do it 25 times in about 10-15 seconds. Just watch me and then you can do also at your own or maybe teach younger people. Okay, count with me. And 25, like this. You have to raise your body on your shoulders, balance on your shoulders, raise it in Bhujangasana and then back to this jumping position. Everyone can try, but maybe the rhythm is not there as yet. But still give it a try. Next, come into plank position. Plank position. We'll together hold the plank for at least 30 and those who can for 1 minute. Okay, set your watches and we are going to start now. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down on the ground in Makarasana.
मैं सभी से चाहूंगा कि वो ये में ये साफ हो जाए कि प्रॉस्पेरिटी वो किसे कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी जो हम आजकल सभी हमें ऐसे समझ आती है कि घर, गाड़ी में बड़ी इज्जत, लोग अच्छा अच्छा बोले, क्या वो ही प्रॉस्पेरिटी है या कुछ और है? क्योंकि जो हम इंटरनली एक थॉट प्रोसेस हमारा होता है, क्या हम कुछ गलत डेफिनेशन लेके तो नहीं चल रहे? जो आज के कोरोना और अलग अलग वायरस जो आ रहे हैं, इन्होंने ये रिवील कर दिया है कि शायद हमारी डेफिनेशन जो प्रॉस्पेरिटी या तरक्की की थी, वो शायद कहीं ना कहीं गलत थी। तो मैं चाहूंगा आप सबको कि अपने अंदर एक बार अपने आप को क्वेश्चन करें कि हम हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी है क्या? क्या ये सब है कि मकान, गाड़ियां ये भी होनी चाहिए, लेकिन क्या यही सब है कि और कुछ है इससे ज्यादा बड़ा? ये तो चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, धर्मस्य मूलम अर्थम। धर्म का मूल भी अर्थ ही होता है। जो जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो क्या करेगा दुनिया के लिए या दूसरों के लिए? हमारे जो लाइफस्टाइल था, इसमें कभी गरीबी को कुछ ऐसे नहीं समझा गया कि कोई अच्छी बात है। हाँ, सब कुछ होके भी बंदा छोड़ दे, वो बहुत बड़ी चीज मानी गई है। लेकिन ना होना ये हमारे कभी देश में या हमारे कल्चर में था ही नहीं ऐसे। तो वो तो करना ही है, हमें पूरे दिन मेहनत करनी है। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता था आपको कि आपके मन में ये बात मैं डालूं कि प्रॉस्पेरिटी है क्या हमारे लिए, तरक्की, खुशी, ये क्या है, हम क्या समझते हैं इसमें? बॉडी के रिलेटेड भी कुछ हमारी प्रॉस्पेरिटी है कि नहीं? बॉडीली जो हमारी अपनी है, क्या उसको भी ठीक रखना हमारा प्रॉस्पेरिटी में आता है? और आता है तो किस लेवल पे आता है? फर्स्ट सबसे बॉटम पे रखा है कि सबसे टॉप पे रखा है उसे? तो ये मैं चाहूंगा आप सब सोचें अपने अपने लेवल पे, और डिस्कशन भी आप करें अपने दोस्तों के साथ। दोनों हाथ ग्राउंड पे, अंडर योर चिन, इंटरलाउड फिंगर। राकेश जी, आपकी माइक ऑन होगी। Toes pointed inwards, half a feet distance between toes, and then breathe in and up. And hold for 30. राकेश जी, आपकी माइक ऑन है। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down. Slowly down. दोनों हाथ राइट और लेफ्ट शोल्डर की सीध में, and then again भुजंगासन up. Next stretch, eyes towards the roof. Hold for 30. Slowly down. हाथ थोड़े और पीछे मिड बॉडी की तरफ। Again, breathe in and up. बॉडी और रेज होगी, आर्म बिल्कुल सीधी। नेक्स्ट टेस्ट, आईज रूफ की तरफ, ऊपर की तरफ। अगेन होल्ड फॉर 30।
5, 4, 3, 2, 1. And slowly again breathe out and down. Hands under the thighs. दोनों टांगे अपने थाइस के अंदर, दोनों हाथ अपने थाइस के अंदर. Prepare for Shalabhasan, locust pose. Right leg up, toes pointed, legs stretched, and hold here for 30 seconds. Chin on ground. Right leg fully stretched, toes pointed, and hold for 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down. Again, repeat this from left side, left leg up, toe pointed, leg stretched. Don't bend your knee. नी बेंड नहीं होनी चाहिए, लेग स्ट्रेच होनी चाहिए पूरी, तभी आपको फायदा मिलेगा. अगेन होल्ड फॉर 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down. Now both feet together and up. Both legs stretched, knees over the ground, and toes pointed. Again, hold for 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down. Down. Prepare for Superman pose. Prepare for Superman pose. Both legs, hands, both arms forward, arms stretched, both feet together, and then we do Superman pose. Up. Hold for 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down. राकेश जी, आपकी माइक फिर से ऑन है. राकेश जी म्यूट कर दे. Come into Shavasana. And hold this for 1 minute. Just focus on your body part, on your breath. अगर पॉसिबल हो तो अपने शरीर को अपने बाहर से आके देखना है, ऊपर से, जैसे किसी मरा हुआ
नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज, दोनों टांगों को बेंड कर देंगे और अपनी बॉडी को अपने शोल्डर से ऊपर की तरफ आर्च करते हुए क्रिएट करेंगे ब्रिज पोज। अपने हील्स को अपने हाथों से पकड़ लेंगे। जो नहीं पकड़ पाता है वो जहां तक उसके हाथ जाते हैं वैसे ही करेगा। Hold for 30 seconds and then slowly down. Next, Pavan Muktasan. Pavan Muktasan. अपने राइट नी को बेंड करते हुए अपने चिन को ऊपर लाएंगे एंड देन टच करेंगे अपने चिन को अपने नी से। पहले अपने राइट साइड से फिर लेफ्ट साइड से। और फिर दोनों घुटनों से एक साथ करेंगे। आप सभी 2 मिनट में करेंगे। Okay. Next, we do supine pigeon twist. Supine pigeon twist. अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग बेंड करते हुए राइट नी के ऊपर एंड देन पुल टुवर्ड्स योर चेस्ट। किसी की ऑन है? अगेन फ्रॉम लेफ्ट साइड। अपनी माइक बंद कर दे सभी। वीडियो ऑन रख सकते हैं, माइकें बंद कर दे। होल्ड करेंगे सेकंड तक एंड ट्राई टू फील योर hamstring and then down. Next, द्विचक्री चलानासन, बाइसाइकिल पोज 100 टाइम्स, 50 टाइम्स नीचे से ऊपर, 50 टाइम्स ऊपर से नीचे। सभी करेंगे अपनी अपनी स्पीड से। हाथ दोनों साइड पे होंगे और स्टार्ट करते हैं। 1 2। पूरा करना है। ये टांग आगे होगी, हवा में नहीं ऐसे ऐसे करते रहना। ये एक बार आराम से करेंगे। पूरा पाँव आगे लाए सभी, पूरा पाँव आगे, दूसरे वाले लेग बेंड इस तरह से होना चाहिए पोजीशन। और फिर ऐसे, ये नहीं हवा में ऐसे ऐसे करते रहे तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। फिर ये पूरा ऐसे। दर्द होगी शुरू में, दर्द बर्दाश्त करेंगे। जितने बार कर सकते हैं उतनी बार करेंगे। 50 टाइम्स ऐसे मैंने बताया, लेकिन अगर आपको ज्यादा दर्द होती है तो आप ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि कमर में भी इसका
इफेक्ट होता है। अगर कोई ज्यादा कमर में तकलीफ है तो वो ज्यादा बार नहीं कर पाएगा। थक जाते हैं, रेस्ट कर ले, लेकिन अगर कमिटमेंट अपने साथ कर दी आपने 100 टाइम्स की, तो फिर 100 टाइम्स करना ही करना। एक साइड से कर लिया, फिर थोड़ा आराम कर सकते हैं 10 सेकेंड, और फिर से ऊपर से नीचे। शवासन में थोड़ी देर लेट जाएंगे। जिनकी सांसें बराबर चल रही हैं वो लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। और जिनको करना है वो पूरा कर लेंगे लेग रोटेशन। हंड्रेड टाइम्स सभी करेंगे। इसके बाद आराम से जब सांसें आपकी नॉर्मल हो जाएं, इसके बाद सुखासन में आ जाएंगे। वो स्टार्ट करेंगे कपाल भाती, स्ट्रोक ब्रीदिंग। 2 सेकंड में एक बार स्ट्रोक के साथ ब्रीद आउट करना है। यहाँ से फिर मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या जो भी आपके नोन लोग हैं उनको भी आप बताएं, ताकि वो भी इस तरह का लाइफस्टाइल अपना सकें। कम्युनिटी सर्विस की तरह तो आप भी अपने लेवल पे हमारे जो थीम है अनलीश योर इम्यूनिटी का, इसे स्प्रेड कर सकते हैं अपने लेवल पे। आप ही योगा के ब्रांड एम्बेसडर अब 5 मिनट तक सभी करेंगे कपाल भाती।
आप करते रहेंगे 2 मिनट। चलिए करेंगे ब्राह्मणी और उद्गीत। अंगूठे से कान बंद एंड देन 3 बार हमिंग साउंड। आंखें बंद ही रखेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को आगे रब कर लेंगे और फिर आंखों पर मलते हुए आंखें खोल लेंगे। आज का सेशन खत्म होता है। आखिर में मैं आपको 4 आर्म स्टैंड कैसे करते हैं। 4 आर्म स्टैंड, एक दिन हेड स्टैंड बताया था, अभी 4 आर्म स्टैंड अपने 4 आर्म्स पे कैसे बॉडी को बैलेंस करने हैं। स्टार्टिंग में पोजीशन ये रहती है, इसके बाद आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रस्ट करते हैं इस तरह से ये, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रेटन करते हैं और होल्ड करते हैं यहीं पर।
और फिर उसी तरह नीचे। ये आ गया हेड स्टैंड और फोर आर्म स्टैंड। हमेशा जब भी हेड स्टैंड या फोर आर्म स्टैंड करना है वो आपने अपने किसी वॉल के अगेंस्ट करना है। ये ऐसे देखा देखी में कि पहले ही दिन आप वो बन जाए, इसमें एक्सपर्ट वो नहीं होता है, और वो करने के चक्कर में आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टेक्निक सही होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं करना है। हेड स्टैंड मैंने देखा है लोग जोर जबरदस्ती जोर लगा के, उसमें बिल्कुल जोर नहीं लगता है। हेड स्टैंड ये इन्वर्जन में बिल्कुल आराम से हो जाता है ये सब। लेकिन कुछ अपने नेक के बल पे, कोई अपने फोर आर्म्स पे, उसके जोर पे वो जब बॉडी को रेज करते हैं दिखाने के लिए सिर्फ, तो वो आपको अच्छा होने की बजाय वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैसा कुछ नहीं करना। ये इसलिए दिखाता हूँ कि अगर कोई करना चाहे, कि इनिशिएट करना चाहे एटलीस्ट, तो वो कैसे कर सकता है अगेंस्ट द वॉल। हमेशा हम कोई यहाँ पर कोई ओलंपिक्स या ऐसे कहीं नहीं जा रहे कि किसी को दिखाने के लिए, अपने घर पे अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए। तो हमें हमेशा अगेंस्ट द वॉल करना है, चाहे हमें लगता भी हो कि हम नीचे ना गिरे, क्योंकि कोई पता नहीं होता, अगर गिर ही गए तो उससे पूरी कमर जा सकती है, कमर नेक बड़ा नुकसान हो सकता है बॉडी का। तो वो हमने सबने ध्यान रखना है। तो चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। नमस्ते।